Hello students, welcome to my YouTube channel that is Commerce Vidya. In this video, I am going to tell you about the three central problems in an economy and causes behind those problems. So here we'll start with the central problems first. Three central problems in an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. These are three central problems which comes under the allocation of resources. I repeat, these three central problems, what to produce, how to produce, and for whom to produce, these three central problems comes under the problem of allocation of resources. So here we'll start with the first problem, that is what to produce. Now what happens, as central problems in an economy is the first unit of microeconomics, so that unit basically begins with the word that is scarcity. Here scarcity means lack of resources in relation to unlimited wants. What is the problem? What is the basic problem which our country, our economy is facing? People are having unlimited wants and economy is having limited resources. So here it is a problem with the economy that how to fulfill the unlimited wants of people with the limited resources. So here the first central problem is what to produce. पहली central problem है हमारी what to produce. I'll explain these central problems in English as well as in Hindi, so it will be very easy for you to understand. First problem is what to produce. Economy इस बात को लेकर confuse है कि उसके पास resources जो हैं वो limited हैं. I repeat, economy इस बात को लेकर confuse है कि उसके पास जो resources हैं वो limited हैं और लोगों की जो wants हैं वो अनलिमिटेड हैं. सो इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस करे? इकोनॉमी के सामने दो क्वेश्चन रेज होते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, वो आखिर बनाए क्या, और सेकंड इन व्हाट क्वांटिटी, वो क्या कमोडिटी बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ इकोनॉमी इज कंफ्यूज्ड कि वो कौन से गुड बनाए, वो कंज्यूमर गुड बनाए, वो प्रोड्यूसर गुड बनाए, वो सिविल गुड्स बनाए, वो इंटरमीडिएट गुड्स बनाए, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ गुड्स. सो हेयर इकोनॉमी इज कंफ्यूज कि वो कौन सी कमोडिटी बनाए. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन्हीं में ही चॉइस करनी है कि कौन सी चीज को बनाना है और कौन सी चीज को नहीं बनाना या कम बनाना है. व्हाट टू प्रोड्यूस पहली प्रॉब्लम का एक दूसरा नाम होता है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आई रिपीट, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ choice. Now we will move to second problem. दूसरी प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, बनाएं कैसे. सपोज इकोनॉमी ने ये डिसाइड कर भी लिया कि हमें क्या बनाना है, हमें पेंसिल बनानी है, हमें नोटबुक बनानी है, हमें कंप्यूटर बनाना है, या हमें कौन सी कमोडिटी बनानी है. अगर ये डिसाइड हो गया है तो अब सेकंड प्रॉब्लम इकोनॉमी के सामने आती है कि बनाना कैसे है. इकोनॉमी के सामने दो टेक्निक है. नंबर वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड नंबर टू इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. अब क्या है, इन दोनों बातों में फर्क क्या है, इन दोनों टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है. देखो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ट्रेडिशनल मेथड है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एक मॉडर्न मेथड है. और क्या डिफरेंस है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज दैट टेक्निक in which more labor and less machines are used. I repeat, in labor intensive technique, more labor and less machine are used, where in capital intensive technique, more machines and less labor is used. Now another question comes, how economy will decide that which technology is to be adopted for producing goods and services. Suppose if we talk about India, India is a labor surplus economy. India is a labor surplus economy. So in India, labor intensive technique and capital intensive, both techniques are used. The economy which is labor surplus, it should use labor intensive technique because it will provide employment to the workers. Now another difference, what happens if economy uses labor intensive technique? It provides employment. But if we talk about the capital intensive technique, as it is the modern technology, what happens in this? अगर कोई इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाती है
तो उससे प्रोडक्टिविटी की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा काम मशीन से हो रहा है और कम काम लेबर से। सो इट वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम। एंड हाउ टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो नोन एज चॉइस ऑफ टेक्निक। I repeat, this problem is also known as choice of technique. Now we will move to third problem, that is for whom to produce. इस प्रॉब्लम में इकोनॉमी को क्या डिसाइड करना है? अब इकोनॉमी ने यह भी डिसाइड कर लिया कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, यह भी डिसाइड कर लिया कि कैसे प्रोड्यूस करना है, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इकोनॉमी के सामने आ रहा है कि किसके लिए बनाना है। बिकॉज अब हमारे देश में तो हर तरह के लोग हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं। सो इकोनॉमी हैज टू डिसाइड दैट फॉर हुम गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, फॉर रिच, फॉर मिडिल क्लास और फॉर पुअर। क्यों? क्योंकि अगर कोई कॉमोडिटी पुअर क्लास के लिए बनाई जाती है तो रिच उसको खरीदना पसंद नहीं करेगा। दूसरी प्रॉब्लम, अगर कोई कॉमोडिटी रिच क्लास के लिए बनाई जाती है तो पुअर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। सो यहां पे इकोनॉमी हर तरह का गुड्स प्रोड्यूस भी कर रही है। और अब अगर हम बात करें, एग्जांपल्स अगर हम ले तो 2 रुपए का पेन भी आता है, 200 रुपए का पेन भी आता है और 2000 का पेन भी आता है। एक घी का पैकेट 500 रुपए किलो भी है, एक घी का पैकेट 1000 रुपए किलो भी है और एक घी का पैकेट 100 रुपए किलो भी है। सो इकोनॉमी तो हर तरह का गुड्स बना रही है। डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी है। आप जहां पे काम कर रहे हैं, आपको रेंट मिल रहा है, आपको वेजेस मिल रही है, आपको इनकम जो भी आ रही है, अब आपकी इनकम डिसाइड करेगी कि आप कौन सी कॉमोडिटी खरीदेंगे। इट मींस फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये इसका दूसरा नाम था, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का। अब हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी परेशानी चल रही है कि आखिर अगर हमारे देश में ये 3 प्रॉब्लम हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव से। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, रिच के लिए, पुअर के लिए, मिडिल क्लास के लिए। सवाल यह है कि आखिर इन तीनों प्रॉब्लम के पीछे कारण है क्या? व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दीज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स? सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉजेज बिहाइंड दीज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब 3 प्रॉब्लम्स हमारी हैं, व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आखिर इसके पीछे जो रीजंस हैं वो क्या है? नंबर 1, अनलिमिटेड वांट्स। लोगों की वांट्स इतनी ज्यादा हैं कि इकोनॉमी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज उनको फुलफिल नहीं कर सकती। अब मान लीजिए एक घर में 3 बच्चे हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं वो 30-40 हजार रुपए महीना कमाते हैं। अब मान लो बच्चों ने जिद कर दी कि हमें एसल वर्ल्ड घूमने जाना है, और दूसरे बच्चे ने जिद कर दी कि मुझे आईफोन लेना है, और तीसरे बच्चे ने जिद कर दी कि हमें और थोड़ा सा सामान ला के दे दो। तो पेरेंट्स के सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। पेरेंट्स के पास जितने पैसे हैं वो उतने पैसे से ही अपने बच्चों की डिमांड, वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे। यही प्रॉब्लम इकोनॉमी के साथ है। यहां क्या परेशानी आ रही है? यहां पे है कि लोगों की वांट्स बहुत ज्यादा हैं। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। अब उसके पास ये भी कंफ्यूजन है कि वो किसको ज्यादा प्रोड्यूस करे और किसको कम। इसीलिए एक तीसरी प्रॉब्लम है ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इकोनॉमी डिसाइड करती है कि प्रायोरिटी क्या है। अगर मैं एग्जांपल हूं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी एक नहीं कई चीजों में यूज की जा सकती है। हम लोग उससे फैन भी चलाते हैं, हम लोग उससे ड्रायर भी चलाते हैं, हम लोग उससे रेफ्रिजरेटर भी चलाते हैं, किचन के काम भी होते हैं। अब इसी तरह से सपोज इकोनॉमी को बनाना है, असेंशियल गुड्स बनाने हैं, या फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को बनानी है, बुक्स बनानी है, तो इकोनॉमी को यहां पे ये डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी एक कॉमोडिटी में वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, अपने रिसोर्सेस किसी एक कॉमोडिटी को बनाने में ज्यादा लगाएगी, तो उसको मजबूरी में दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉजेज हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स के पीछे। सो दिस वाज द टॉपिक, 3 central problems and causes behind it. Please subscribe the channel and press bell icon. Thank you so much.